So defending champions Argentina are into the round of 32 and quite easily अपने बैक करेंगे दोनों गेम से 6 पॉइंट्स। पहले गेम में ऑफ कोर्स वी सॉ ए मेसी हैट्रिक और सेकंड गेम में हमें मेसी का ब्रेस देखने को मिला। ऑफ कोर्स मेसी बीइंग द ब्रेस मैन which he has been called throughout his career. So in this game Argentina won 2-0 but कोई बहुत easy game नहीं था अर्जेंटीना के लिए. It was a hard fought victory for them because as Austria being a good defensive team was not quite easy to attack on. But Argentina, the team they have currently, the beautiful defenders they have, the beautiful midfield they have, and of course attack में थोड़ा lacking तो है with Lautaro Martinez missing chances, with Julian Alvarez हम last moment में देखने को मिला where he missed I think quite easy chance वहाँ पर, but Leo Messi is always there in the attack. पर Leo Messi में आने से पहले I think मुझे दो players के बारे में ज़रूर से बात करना पड़ेगा, दैट इज़ एलेक्सिस मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडिस। आई थिंक अगर जिसने पूरा गेम देखा है, these are the two persons who orchestrated the midfield for almost the 90 minutes. अगर मैं मैकलिस्टर की बात करूँ, he had a 94% of pass accuracy, 66 total attempted pass थे and 62 he completed those. This tells you how accurate McAllister was in the whole game. Also for Enzo Fernandez, कुछ एरिया में वो gritty challenges लेना, it was always Enzo Fernandez over there. Although Austria was unable to make a lot of chances, stats की बात करूँ तो total shots जो Austria ने लिए, that was 6 shots. But I think इसमें हमें ऑस्ट्रिया के अटैक से ज़्यादा तारीफ अर्जेंटीना के डिफेंस की करनी होगी, because what a defensive performance this team is showing. Even last World Cup में भी it was a defensive performance which led Argentina to that trophy. और मुझे लगता है कि अगर हम इस बार ट्रॉफी को डिफेंड करना चाहते हैं, then this defense need to be working in every game. बहुत ही organized defensive play by Lionel Scaloni for Argentina. और हमने सारे 90 minutes में देखा एलेक्सिस मैकलिस्टर को ड्रॉप इन करते हुए in the false center back, center defensive midfielder position में आते हुए, and he was looking very good at that position as well. But बात करूँ अगर मेसी की, मेसी जिन्होंने 9th minute में penalty मिस किया, to just show that he is also a human like us. But उसके बाद थोड़ा उनका भी गेम स्लो डाउन हुआ था. He had some missed passes, थोड़े से वहाँ पर एक चांस बीच में भी मिस किया था. But after that, मेसी तो मेसी है ना यार. Then he scored on the 38th minute a pretty messy वाला गोल है ना. मेसी का ऐसा गोल हमने बहुत बार देखा है. And then on the 90 plus 5 minutes, he created that chance for Julian Alvarez, and Julian Alvarez should have finished that, but वहाँ पर से मेसी फिर से फिनिश करते हैं. And the second touch he took was again, मतलब कैसे कर लेता ये बंदा. It is a feast to watch Messi. पता नहीं कितने मैचेस और हमें ऐसे देखने पड़ेंगे, बट वी आर ऑल इन फॉर इट. बट इसी के साथ आई थिंक मेसी की तारीफ तो हम करते नहीं थकेंगे, बट आई ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द अटैकर्स ऑफ अर्जेंटीना, बिकॉज निको गोंजालेस को एक क्लियर कट चांस मिला था वहाँ पर, विच ही फेल्ड टू बरी. देन यूलियन अल्वारेस को जो चांस बना के दिया था मेसी ने, ही शुड ऑल्सो हैव टेकन द शॉट एंड टेकन द गोल. लुतारो मार्टिनेज का भी एक खराब गेम कहूँगा. तो although Lautaro Martinez was dropping down to take those challenges, अपने में चैलेंज लेके बॉल जीतना वो सब कर रहा था, but the clinicalness of a striker we need right now is very important. I think this is the only thing जिसमें अभी के टाइम पे अर्जेंटीना थोड़ा लैग कर रहा है. We have 5 goals of Argentina and all the 5 of them have been scored by Lionel Messi. I think हमें इसमें खुश तो होना ही चाहिए, बट ये थोड़ा सा चिंता का भी विषय होना चाहिए for Argentina as the other strikers are not getting their goals. पता नहीं अब नेक्स्ट मैच में निको पास को स्टार्ट मिलता है क्या, या फिर मतलब नेक्स्ट मैच में एटलीस्ट मेसी को तो रेस्ट मिलेगा. आई थिंक लियोनेल स्कलोनी विल बी मैनेजिंग हिज मिनट्स, बिकॉज आज के मैच में ही हैड प्लेड फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 100 मिनट्स के लिए वो प्ले किया है. So I think next match में we will see a lot of changes in the lineups, which is required क्योंकि we are already qualified और हम लोग फर्स्ट पोजीशन से ही जा रहे हैं, क्योंकि head to head is there. तो
इवन ऑस्ट्रिया अगर भी नेक्स्ट मैच जीतती है या फिर हारती है, दैट डजेंट मैटर. वी आर गोइंग एज द फर्स्ट ऑफ ग्रुप जे एंड वी आर इनटू द राउंड ऑफ 32. और यहाँ से चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होगी, पता नहीं अब वहाँ से ग्रुप आई थिंक के या फिर एच है, वहाँ से स्पेन या फिर उरुग्वे से कोई एक आएगा जो सेकंड होगा वहाँ पर. इफ इट इज उरुग्वे देन दिस विल बी अ टफ फिक्चर फॉर अर्जेंटीना. इवन केपो वर्दे भी हो सकता है वहाँ पर, बिकॉज लास्ट मैचेस में हमने देखा है हाउ केपो वर्दे गॉट इट ड्रॉ विथ उरुग्वे वहाँ पर. तो उसमें तो मजा आएगा ही. और आज रात को हमारे पास दूसरे गोट का मैच भी है, पोर्टुगल अगेंस्ट उज्बेकिस्तान. अब उज्बेकिस्तान इज अ टफ टीम टू प्ले विथ. दे आर वेरी टेक्निकल प्लेयर्स है वहाँ पर. अगर यहाँ पर पोर्टुगल पॉइंट लॉस करती है देन इट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम टू कोप अप. बट आई थिंक पोर्टुगल इसमें एक क्लियर कट विन लेना चाहिए. कॉन्गो के साथ फर्स्ट मैच का थोड़ा प्रेशर रहता है. यू हैव बीन कॉल्ड द फेवरेट फॉर द टूर्नामेंट, तो उसका भी थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है. बट आई थिंक उज्बेकिस्तान के साथ पोर्टुगल को वहाँ पर पॉइंट निकाल लेना चाहिए. एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ. अभी फ्रांस और इराक का मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, होगा. वी विल बी वाचिंग दैट मैच एज वेल. एंड आफ्टर दैट नॉर्वे वर्सेस सेनेगल. एंड फीफा वर्ल्ड कप फिर से मतलब एक तो 17 जून आई थिंक 17 जून था, हाँ उस दिन मजा आया था. और उसके बाद आज पता है, अब देखते हैं किलियन एम्बापे कितने गोल्स स्कोर करता है, अर्लिंग हालैंड कितने गोल्स स्कोर करता है. सो वी आर ऑल हैविंग फन एंड एंजॉय द वर्ल्ड कप, है ना. ज़्यादा दिन बचे नहीं है अभी, ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हैं शायद से. तो देखो जितने मैचेस हैं. सो दिस इज श्रेयांत साइनिंग ऑफ फ्रॉम फुटी मीडिया.